Okay, so good morning, class. Today we are in our second semester of Diploma in Architecture. So the subject we are going to study is applied mathematics. Okay, so for this applied mathematics, see course code is 312301. Okay, and we have 5 COs for this course. So first CO is what is CO? CO is course objective. That is why we are learning this course. So the first CO is to solve the broad-based engineering problems of integration using suitable methods. So in this semester, we are going to study integration first of all, and since there are number of formulas which we need to learn, so we will have enough time to learn them. So that's why we are starting with integration this time. CO2 is to use definite integration to solve given engineering related problems. Okay, so forget about engineering. This is basically applicable everywhere. Application of integration is in every part. For example, you want to calculate an area of an irregular shape. Okay, so there integration will help you. How we are going to discuss. Then next is CO3. Apply the concept of differential equation to find the solution of given engineering problems. Differential equations we are going to solve. Then CO4 is apply numerical methods to solve program specific problems. So what is numerical methods? Numerical methods are some formulas or theorems developed by some mathematicians. So those methods we are using to solve, basically those methods we could apply in programming. Means when we have to calculate n number of data points. So at that time, a simple formula cannot work. So you need some methods or some iterations for that to get that answer. So manually, it is not possible to take 50 iterations or 100 iterations of the same formula. So what we do, we learn these kind of numerical methods to get some kind of answers. And these kind of methods are applied as a program which we use in computers. And then the computer will perform n number of iterations. And whatever you like, means 50 iterations, 100, 1000, whatever number of iterations you want. So that program will conduct that much iterations and then you will get exact accurate answers. But to understand, to go till there, we need to understand the basic numerical methods. The basic method we must learn. And here, for exam purpose, we will take one iteration, two iteration, and we will get approximate answers. Those will not be the exact answers, but those will be the approximate answers. And those numerical methods we are going to learn. Then the last CO is probability distributions to solve elementary engineering problems. So you must have heard about probability. So what is probability? क्या क्या? नहीं नहीं हाँ, chances to get something. जैसे for example, there is a box and there are 3 different colors of balls in a box, है ना? And you have to pick any one ball without seeing. So what are the chances that the ball is red? है ना? So that is probability. What is the probability? Or for example, means there could be n number of examples. For example, randomly you are picking something from a box, or there are you have cards, है ना? So टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 56 कार्ड्स होते हैं ना? एक जो आपका सेट होता है उसमें 56 कार्ड्स होते हैं. सो फ्रॉम दैट कार्ड्स, वो जो आपने मैजिक शो देखते हो उसमें बताते हैं कि आप बताओ आपको कौन सा चाहिए. देन यू से कि मुझे हार्ट का 5 नंबर चाहिए. सो वो उसमें से निकाल के वो दिखाते विदाउट सीइंग दोज कार्ड्स. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 4 बार पिक करेगा और उसमें से एक बार आपका आंसर करेक्ट आएगा.
सो दैट या फिर आप कॉइन टॉस करते हो तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, अगर आपने 3 कॉइन एक साथ टॉस किए। सो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं एंड दैट कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी। ठीक है। सो दिस विल बी योर CO5 एंड सिमिलरली दीज आर द 5 units means CO1 belongs to unit number 1, CO2 belongs to unit number 2 and so on. So the assessment scheme, which is the important part for us. So assessment scheme is same as we have discussed in our basic mathematics. So basically, there will be 3 classes for CL, and one will be tutorial wala class. Okay, yes. ठीक है. So we will be engaging 4 hours per week. ठीक है. 3 will be for lecture and 1 hour will be there for as a tutorial. In tutorial, you are expected to practice number of questions which we have studied already in class. So you have 2 credits for this subject. Duration for exam will be 3 hours as it was there in basic mathematics. And the exam scheme will be FETH will be means internal will be 30 marks, external will be you have to give an exam of 70 marks, right? At the exam center, total 100 marks, 40 marks minimum you should score. है ना? There is a combined passing, so 40 is minimum marks, total marks 100. Okay. So this is your syllabus for this semester. As we discussed, first unit is indefinite integration. Okay. So as we discussed at the time of derivation, that there are integration means to multiply things, है ना? When you keep on multiplying things, आप जब बढ़ाते जाते हो उस नंबर को, so you need some limit कि कहाँ तक बढ़ाना है. तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन में देर आर लिमिट्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है? एस. एस बनाते हो आप, दैट इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. एंड लिमिट मीन्स 0 to 10, 0 to 100, 0 to 1000 और एनीथिंग, 0 to 2, 0 to 5, एनीथिंग, राइट? सो इट डिनोट्स कि आपको कहाँ से कहाँ तक. फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इक्वेशन, है ना? देर इज एन इक्वेशन जैसे ax² + by + c. अब इसमें आपका अननोन कौन सा रहता है? x. x इज अननोन. अननोन और इन अदर वर्ड्स वेरिएबल. x इज वेरिएबल. a b c आर कॉन्स्टेंट्स, राइट? सो एट द प्लेस ऑफ x आपका ये कहना है, मतलब अगर मैंने आपको बोला कि x की जगह पर एक बार 0 डालो और आंसर निकालो, फिर बोला कि x की जगह पे 0.5 डालो आंसर निकालो, x की जगह पे 1 डालो आंसर निकालो, 1.5, 2, 2.5, 3, ऐसे आपको 10 तक जाने के लिए मैंने बोला. तो ये सेम चीज करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? मीन्स एक बार सॉल्व करने के लिए, मतलब x की जगह पे आपने 0 डाल के वो सेम इक्वेशन आपने सॉल्व किया, इसको आपको 2 मिनट लगे. ऐसे 2 मिनट करते 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 आपको मैंने बोला कि 0.5 का आपको डिफरेंस लेना है और ऐसा आपको 10 तक जाना है. तो आपको सेम क्वेश्चन कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, 0.5 का ही डिफरेंस लेना है. मतलब 0 के बाद 0.5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1.5, फिर 2, है ना? तो यू विल हैव टू सॉल्व द सेम इक्वेशंस 20 टाइम्स, राइट? सो इसी जगह पे अगर आप उसको इंटीग्रेशन में डालते हो और आपने लिमिट सेट कर दिया 0 to 10, ठीक है? तो अब आपको इसके सारे, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, इतने वैल्यूज डालने के बाद आपको क्या क्या मिल सकता है, और फाइनल जब आप 10 तक जाते हो तो उसका आंसर क्या मिलेगा, वो आपको इंटीग्रेशन से मिलेगा. तो आपका टाइम जो है वो बच गया. ठीक है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ अब इसमें 2 पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन, सेकेंड इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. सो
As per our units, we are going to learn first indefinite integration, which is a simpler form in which there is no limit. Limit is not specified. ठीक है, ऐसे नहीं बोला है कि 0 से 10 तक या फिर क्या, ऐसा लिमिट स्पेसिफाई नहीं किया है. यू जस्ट हैव टू उसको इंटीग्रेट करना है ना. तो वो वाला पार्ट आपका यूनिट नंबर 1 में आएगा. यूनिट नंबर 2 में आप पढ़ोगे डेफिनाइट इंटीग्रल, जब आप उसको लिमिट प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है. देन थर्ड यूनिट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन. And fourth will be numerical methods. In numerical methods, we are going to learn number of different methods. So in which there will be a bisection method, then there will be regular-Falsy method, then there will be Newton-Raphson method, then there will be Gauss-Seidel and Jacobi's method, and finally Bakshali's iterative method. Okay, these much methods we have to study. And finally, in last unit, we are going to discuss about the probability distribution. Means probability we are going to study, in which we are going to discuss binomial distribution, Poisson's distribution, and normal distribution. So there are 3 variations. After this, yes, this is the important part. Here they have mentioned the number of questions or will be that will be asked in your MSBT ka exam. है ना? So for indefinite integration, that is first unit, total 20 marks के questions will be there, and learning hours are 15, and जो basic 2 marks वाले question है वो आएंगे, 6 mark का question आएगा और 12 marks का question आएगा. ठीक है. सेकंड जो आपका डेफिनाइट इंटीग्रल है, सो देयर विल बी 12 मार्क्स के क्वेश्चन इन एग्जाम, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स. है ना. द सेम वेटेज इज देयर फॉर यूनिट नंबर 3, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर यूनिट नंबर 4, न्यूमेरिकल मेथड्स, वेटेज इज 14. So there will be a 2 marks wala question, 4 marks and 8 marks question. And for probability distribution last unit, the allocated marks are 12. So there will be 2 marks ka question, 1 4 marks ka question, and 1 6 marks ka question. Okay. So according to this, you have to plan your studies. है ना? So assessment tools. So first is formative assessment. For formative assessment, we are going to take your class tests and assignments. Okay. So there will be an assignment after each unit, which you have to complete and upload on our LMS portal. And after every 2 units, there will be a class test, and you have to solve that class test. It will be compulsory, and those marks will be considered in this formative assessment wala part, which is for 30 marks. So there will be a combination of your attendance, your assignment submission, and class test. ये तीनों को मिला के आपका वो 30 मार्क्स का इंटरनल बनेगा, राइट. दैट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट. And summative assessment will be your end term exam, which will be there for 70 marks. These are the textbooks which you can refer for applied mathematics this semester. So B.S. Grewal and Datta. These 2 books, we have this Das, Advanced Engineering Mathematics by H.K. Das. This book is already available in our library. You can discuss with the library ma'am, Meenakshi ma'am. And we are going to order this Grewal and Datta. These are nice textbooks. ये वाला ना ऐसा. I know, but we cannot keep it as a reference book. It is not that authenticated. है ना. मतलब इसके ऊपर
ये एमएसबीटी ने नहीं बोला है कि आप इसको गाइड बोल के, ऑफ कोर्स आते ही है, और हम उसको फॉलो भी करेंगे। वी हैव दैट बुक, आई एम गोइंग टू शेयर दैट बुक विथ यू। जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, उसके प्रिंट निकाल के उसका पीडीएफ एंड ऑल वो सब होने वाला है। सो वो सारा नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जैसे इस बार आपको एलएमएस स्टार्ट हो गया है, आप जाके देख सकते हो, है ना। और आज मैं उसको अपडेट भी कर दूंगी, तो आपका जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो आपके पास उसके नोट्स अवेलेबल रहेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस भी रहेंगे, है ना। सो बट उसके लाइब्रेरी के लिए कॉपीज नहीं आ सकती, है ना। वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगी पूरा एलएमएस पे। लाइब्रेरी में मुझे रेफरेंस बुक ही मंगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो 8 8 दिन का कुछ है ना उनका बीटी कार्ड का। कॉलेज के तो ये सब्जेक्ट का ही तो बुक है ना। ये वाला जो रहेगा, हाँ, उसका जो एडवांस, ये रेफरेंस, हाँ। तो मैम ने लास्ट टाइम में क्लास में जो करते हैं वो हम घर पे नहीं देते, वो बस ये भी बैठ के आपको पढ़ना होगा। लेकिन हम डिग्री के बच्चों को तो देते हैं। नहीं, उन्होंने कहा था लास्ट टाइम जब बुक पढ़ना लेके गए थे, हाँ हाँ, उन्होंने कहा था कि जो रेफरेंस वाले बुक है वो सबको एक एक पढ़ना होता है, आप घर नहीं लेके जा सकते। याद है कि क्लास में मिला लाइब्रेरी से। नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ उनसे, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, आप और बात। हाँ, तो ऐसा कौन सा बुक है जो उन्होंने अलाउ किया है घर ले जाने के लिए? सब्जेक्ट बुक, मतलब कौन से? ये वाला सब्जेक्ट का बुक है ना, और इसके बहुत सारे बुक रहते हैं जो रेफरेंस वाले, ये बुक घर पे लेके जा सकते हैं, जो रेफरेंस वाले बुक नहीं लेके जा सकते। मैं बात करती हूँ, वैसे तो होगा नहीं। वैसे, हाँ, and these are the links for learning websites and portals. You do take a picture of this and इसको रेफर करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे, सो जिसको आप और पढ़ के अपना और स्ट्रेंथन कर सकते हो। वैसे ये पीडीएफ भी एलएमएस पे है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। इसमें एनपीटीएल के अभी तक किसी ने एनपीटीएल का कोर्स किया है क्या? एक किया है? अच्छा, क्या है? ओके, एनपीटीएल एक पोर्टल है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, और इस पोर्टल के ऊपर देयर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब आप कोई भी खोल के देख लो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से लेके तो मेडिकल की कोर्सेज, तो कोई भी ब्रांच, है ना। और ये सारे जो लेक्चर्स है, मतलब जो कोर्सेस है, ये आईआईटी के प्रोफेसर्स ने बनाए हुए हैं। So they are very good and they provide very good quality of reference material also. They also take your exams. They also give you assignments. है ना? So there is a complete course, complete online course. So MSBT is also expecting you to apply to that course, और उसके वो आपको credits आपके consider करेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आज ये करना है आपको। आप घर पे जाओ या फिर यहाँ से भी इंटरनेट एक्सेस होता है, तो एनपीटीएल में पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा आपका। लॉगिन क्रिएट करो, और वहां पे उसका स्वयं स्वयं भी नाम है उसका पोर्टल का, स्वयं एनपीटीएल ऐसे करके। तो वो वहां पे आप अपना ये क्रिएट करो, देन इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ कोर्सेज। अब उसमें से जैसे यहाँ पे आपको ये एडवांस मैथमेटिक्स है, तो इसमें से कोर्स मैच करो, कि आपके इसमें का हो सकता है कोई एक ही टॉपिक मैच करे, या जैसे भी। सो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर अगर आपको एग्जाम देना है ना, तो यू कैन चूज कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना। सो अगर आपको सिर्फ रेफरेंस मटेरियल चाहिए और सिर्फ पढ़ना है, तो आप विदाउट एग्जाम वाला ऑप्शन चूज करो। उसकी मतलब जो फीस है वो बहुत कम रहती है, या रहती नहीं है शायद, ऐसा कुछ है। वो देखो, मैंने जो कोर्सेज किए थे मैंने एग्जाम वाला ऑप्ट किया था, तो उसके लिए कुछ नॉमिनल 800 900 ऐसी फीस थी, कुछ ज्यादा रहता नहीं है, मतलब बहुत नहीं है एक्सपेंसिव। अभी नहीं बेटा, क्लास के बाद।
सो वहां पे आपको अप्लाई करना है एंड इट इज योर चॉइस। अगर आप वो कोर्स करते हो तो यू विल गेट अ प्रॉपर सर्टिफिकेट। बट उसके लिए क्या है कि आपको उनके वीकली असाइनमेंट रहते हैं। मतलब वो इट इज अ वेरी इंटरैक्टिव एंड इजी प्लेटफॉर्म। मतलब आप रात को 12 बजे भी लेक्चर ओपन करके देख सकते हो, 1 बजे भी देख सकते हो, सुबह 9 बजे भी देख सकते हो। इट इज योर चॉइस। सो एक जो स्टडी मटेरियल उनका खुल गया, वीक 1 का स्टडी मटेरियल उनका ओपन हो जाता है। सो दे एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दैट असाइनमेंट बेस्ड ऑन द लेक्चर। ठीक है। और वो असाइनमेंट करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम मिलता है। उस वीक के अंदर आपको वो क्वेश्चन मतलब ऐसे कुछ उसमें क्विज होते हैं छोटे से, या फिर कुछ छोटा सा एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करना रहता है। तो वो करने के लिए 1 हफ्ते में वो लेक्चर्स आप अपनी पेस से सुनो, एक दिन में भी पूरे सुन सकते हो या रोज एक एक करके भी सुन सकते हो। और वो आपको सॉल्व करना है और उसको सबमिट करना है। तो वो कोर्स जो है, कोई 4 वीक का कोर्स रहता है, कोई 8 वीक का, कोई 16 वीक का। तो आप अपने कन्वीनियंस से चूज करो कि आपको कौन सा कोर्स लेना है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 4 वीक का कोर्स लिया, तो 4 वीक के 4 असाइनमेंट्स कंप्लीट करो। और इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट एग्जाम वाला जिसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए अगर उस कोर्स का, तो आप अप्लाई करते समय ही एग्जाम चूज करो। और फिर आपको ऑनलाइन उसका हॉल टिकट आएगा आपके मेल पे। ठीक है। और अपने यहाँ के जो नागपुर में एग्जाम्स होते हैं वो वाडी में देखो, कुछ वो कभी आप गए होंगे कोई ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए। क्या नाम है उस प्लेस का, आयोन डिजिटल। आयोन डिजिटल के 3 वहां पे लोकेशंस है वाड़ी में, है ना, जहाँ पे वो सारे कार की शोरूम्स है ना। उस साइड में मतलब हिंगना और वाड़ी को जो कनेक्ट करता है ना हॉरिजॉन्टल रोड, वहां पे है वो तीनों सेंटर्स। तो उसमें से कोई एक आपको सेंटर आएगा। और उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव वाला, लिखने वाला एग्जाम नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला है। एंड दैट यू हैव टू अपियर। और जैसे आपको मार्क्स मिलेंगे उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बन के आता है। इट इज दैट सिंपल, यहीं से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। सो एमएसबीटी ने भी बोला है कि आपको ऐसे कोर्सेस करने हैं और उसके सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, वो आपका मार्कशीट में मेंशन भी होके आएगा इफ इट इज रिलेटेड टू दिस। एंड इट इज मतलब वो इतना फ्री है कि फॉर एग्जांपल आपको मेडिकल का भी कोई कोर्स अगर आपको करना है तो आप कर लो, वो आपके रेज्यूमे में ऐड हो जाएगा ना। जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा में ही हेल्प करेगा, बट है ना। तो वो पोर्टल पे आज आपको सबको लॉग इन करना है। और वो कोर्सेज स्टार्ट होने के डेट्स अलग अलग रहते हैं। तो अभी आपको जो कोर्स चाहिए उसको देख के रखो, उसका डेट हो सकता है 2 महीने बाद होगा। तो ध्यान रखो कि कब उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है ना, और तब जाके उसमें आपको रजिस्टर करना है। हो सकता है कोई कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है तो फिर उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो वो आपको देख के रखना है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर माय सब्जेक्ट, किसी और भी सब्जेक्ट के लिए आप कर सकते हो। और इसमें देखो बहुत सारे दिए हुए हैं। SOSmath.com है, फ्री रिसोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स है इसके ऊपर। mathworld.wolfarm.com। इसमें से किसी पे भी जाके आप स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक। For that I want to show you a video lecture.